Okay, it's already 9:33, so let's start. Good evening, everyone, and I welcome you all to these enlightening, insightful, and knowledge-driven spiritual sessions on Bhagavad Gita. Of course, these sessions would be prolonged sessions, maybe to the span of even 5 years or so. Throughout these sessions, we'll use a blend of English and Hindi as the medium of instruction. हम दोनों English और हिंदी का use करेंगे. And I trust that your participation in these sessions will lead to substantial benefits. You will reap great benefits out of these sessions. And I request you and I encourage you to attend these sessions regularly. और इसका recording शायद आप लोगों तक पहुंच जाएगा if these sessions are recorded properly. Let's see how these things go. And feel free to engage and ask questions wherever necessary. And as we embark on this spiritual journey of studying Bhagavad Gita, I hope that all your spiritual doubts and all your day-to-day problems of life will be solved along with as the journey progresses. So today, I'll be starting off with the second chapter of Bhagavad Gita. This is called Sankhya Yoga. Sankhya Yoga. Before that, I'll be giving you a brief background or orientation about the second chapter. So this is very important. This will help set the stage and context for the exploration of this second chapter. And this second chapter is all about self-discovery, Atma Dhyana. So it's basically understanding our own self, understanding the nature of the Atma, understanding the attributes of Atma. And the great benefit of studying this chapter is it will get rid of ignorance and help us understand who we really are. तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे प्रॉब्लम्स के कारण इग्नोरेंस है. सो वो इग्नोरेंस को ये चैप्टर मिटाएगा और आत्मज्ञान का साक्षात्कार होगा अगर ये चैप्टर को हम सही से समझ पाए. So before starting, let us begin by offering our respectful obeisance to our Guru and God. So please join your hands and pray. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Now, a seeker has to go through few stages if he has to successfully gain the spiritual knowledge or spiritual enlightenment. एक साधक को कुछ स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है अगर उसको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या स्पिरिचुअल नॉलेज अगर चाहिए तो उसको फ्यू स्टेजेस पार करना पड़ता है. आज हम अंडरस्टैंड करेंगे वो स्टेजेस कौन से हैं. द फर्स्ट स्टेज इज द डिस्कवरी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ samsara, identification and acknowledgement of the problem of samsara. साधक को एहसास होना चाहिए कि वो संसार के प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है. He has to understand that he is rooted deep in the crux of problems, in the ocean of problems. वो संसार के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, संसार के प्रॉब्लम से फाइट कर रहा है. So he is fighting against the problems of samsara. This is the first stage. The first stage is to discover the problems of samsara. So what are these problems of samsara? The samsaric disease consists of raga, shoka, moha, and these have to be experienced and recognized.
So what are these afflictions of samsara? संसार के प्रॉब्लम्स कौन से हैं? ये मोस्टली इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अरिषड वर्ग जिसे बोलते हैं, राग, शोक, मद, मत्सर, मोह, काम, क्रोध, ये सारे संसारिक प्रॉब्लम्स हैं। इसको आइडेंटिफाई करना साधक का फर्स्ट स्टेज है। सो ही हैज टू एक्नॉलेज दैट he is deep rooted within these problems. वो प्रॉब्लम में फंस चुका है, प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता है, but he doesn't know how. So the first stage is the discovery or identification of the problems of the world, the samsara. So भगवद गीता में एक श्लोक आता है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, अध्याय 8 श्लोक नंबर 15, चैप्टर 8 वर्स नंबर 15. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम. सो इस जगत को दुखालय बोला गया है. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी. इट्स अ प्लेस फुल ऑफ मिजरीज. दुख से भरा पड़ा है ये जगत. इसमें सिर्फ दुख ही दुख है, और ये अशाश्वत भी है. दिस इज टेम्पोरल इन नेचर. इसमें सबको दुख झेलना पड़ता है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्सपीरियंस misery, unhappiness, sorrow. They are drowned in the ocean of sorrow, misery and unhappiness. ये inevitable है. 99% of the लोग miserable है, unhappy है, असंतुष्ट है, और they're unhappy at every stage of life. और इसमें बहुत ही चुनिंदे विरले कुछ लोग हैं जो ज्ञानी, जिसको ज्ञानी कहा जाता है, वो सदा सुखी रहते हैं. So a very few enlightened people experience pure and permanent happiness, what we call as bliss. ये देखिए, try to understand the importance of this. ये जगत जो है अशाश्वत है. It's temporary. Within this temporary realm, finding the permanent happiness is the greatest art. ये जगत जो है टेम्पररी है. यहाँ की चीजें टेम्पररी है, यहाँ के इमोशंस टेम्पररी हैं, यहाँ के फीलिंग्स टेम्पररी हैं, यहाँ के इवेंट्स टेम्पररी हैं. जो भी यहाँ घटनाएं घटित होती हैं वो सारे टेम्पररी ही हैं. इस टेम्पररी जगत में परमानेंट खुशी पाना एक सटल और एक स्पिरिचुअल आर्ट है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 2. To find permanent happiness in this temporary world. ये permanent happiness क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुख आता है जाता है, तो ये रहता नहीं है. It's like sinusoidal wave. ऊपर जाता है, नीचे आता है, ebbs and tides of wave. कभी टिकता नहीं है. दुख भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट नहीं है. बट उस अगर एक घटित होता है सुख, सुखद क्षण, उस सुख को बरकरार रखना, टू फाइंड इनर पीस एंड परमानेंट हैप्पीनेस, इज द ग्रेटेस्ट आर्ट दैट वी स्ट्राइव टू स्टडी इन दिस चैप्टर नंबर 2. हैविंग सेड दैट, एक जगह शंकराचार्य जी बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम. ये भज गोविंदम करके सीरीज ऑफ श्लोक है. उसमें 21st श्लोक में ये उल्लेख किया गया है, यह संसारे बहुदुस्तारे. दिस संसारा, दिस संसारा, दिस वर्ल्डली थिंग is extremely difficult to cross. बहुदुस्तारे. It's an ocean of contraries. It's an ocean of conundrums. ये झंझट भरी दुनिया है. तो इसमें प्रॉब्लम्स, तो इसीलिए उसको भव सागर बोलते हैं. इसको पार करना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है. पाहि मुरारे, ओनली विद इनफाइनाइट कंपैशन, कृपया पारे पाहि मुरारे. ओनली विद द इनफाइनाइट कृपा ऑफ भगवान we can cross this ocean of miseries. Only with his infinite compassion
we can solve these सांसारिक problems. तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, we are in the first stage. We are trying to acknowledge that we are deep rooted in the problem of samsara, and we are seeking a way out of it. और पूज्य दयानंद स्वामी जी points out, दुखम दुखम सुखम दुखम दुखम. वो बोलते हैं कि a little pleasure is preceded by lots of pains and followed by lots of pains. ये दुनिया में बहुत सारा दुख है, उसमें से एक हल्का सा क्षणिक सुख आता है, उसके बाद फिर से बेहद दुख आता है. तो a quantum of pain and a little bit of happiness, again followed by a quantum of pain. That is how the world is made up of. दुख से दुख भरा है, उसमें बीच बीच में हम क्षणिक सुख पा लेते हैं, but that is temporary in nature. तो the first step is acknowledging that we have problems. What sort of problems? The inner problems such as raga. Raga is attachment, shoka, moha, so on and so forth. And after recognizing these problems, a person tries to solve the problems by himself. एक बार प्रॉब्लम समझ लेने के बाद आदमी क्या करता है? आदमी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है all by himself. All by himself. So somewhere there's a mistake here. How he tries to solve the problem. So generally what we do is, we do not understand that the problem is within us. And therefore, we tend to blame the external factors for our problems. We try to externalize the problems. हम लोग क्या करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान? हम कभी ये एक्नॉलेज नहीं करते कि प्रॉब्लम हमारे भीतर है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है. We never acknowledge this fact. Rather, we tend to blame the external factors for our problems. हम लोग प्रॉब्लम्स को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं. प्रॉब्लम्स की उत्पत्ति बाहर से होता है, ऐसी धारणा हम लोग रखते हैं. सो प्रॉब्लम का जो जड़ है, रूट कॉज है, वो बाहर है. ये जो धारणा है वो बहुत गलत है. एंड दैट इज द प्रीमाइस ऑन विच वी गो. सो यहाँ पे जनरली people play two cards here. Generally, people play the blame game or they play the victim card. Victim card में क्या होता है? तो लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, circumstances change हो गए इसलिए मेरे साथ ये हुआ. They try to victimize themselves because of some uncontrollables happening outside. दूसरा चीज होता है ब्लेम मेंटालिटी. तो ब्लेम गेम में क्या होता है कि उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, कारण कोई और है. उसने ऐसा किया, मेरे साथ ये हुआ, थिंग्स चेंज हुई, मेरे साथ ये हो गया. सो हम लोग हमें छोड़ के बाकी दुनिया को ब्लेम करने लगते हैं. सो दीज आर द टू थिंग्स, ब्लेम गेम एंड victim card. We have to come out of it. Somewhere we have to recognize that uh, the problems lie within us, and only enlightened people acknowledge that. बाकी सब लोग acknowledge करने जाते नहीं. सब लोग they try to externalize the problem, and that's where the problem is. We consider the external world is a root cause of the problem. जब हम ये सोचते हैं तो हम क्या करते हैं? First thing is, we try to adjust, we try to change ourselves. Second thing is, we try to change the external circumstances. जब हम बाहरी तरफ प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं या बाहरी तरफ प्रॉब्लम को इशारा करते हैं, बाहर के प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? We do two things. Either we change ourselves or we try to change the external conditions. हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं
या दुनिया को बदलने की या बाहरी सरकमस्टांसेस को बदलने की कोशिश करते हैं। सो अब देखिए, generally a poor man thinks that it is the poverty which is the cause of his misery. ये जो गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं कि उनकी गरीबी, it is the root cause of their misery, and that is because of their ignorance. Or an unmarried person may think that it is the unmarriedness that is making him unhappy. एक अविवाहित व्यक्ति वो समझता है कि उसकी शादी नहीं हुई है इसलिए वो दुखी है. Whereas a married person thinks it is the childless state that is causing him the problem of unhappiness. शादीशुदा व्यक्ति सोचता है उसको बच्चा नहीं हुआ इसीलिए वो खुश नहीं रह पा रहा है. So somewhere यहाँ पे क्या हो रहा है? We are trying to place the problem outside and go on tampering and adjusting. हम लोग प्रॉब्लम्स को बाहर ढूंढ रहे हैं, हमें बाहर प्लेस कर रहे हैं और अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रॉब्लम एक्सटर्नल कंडीशंस को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल some rare intellectual ones discover that the problem to be within themselves, not outside. ये सब स्ट्रगल करने के बाद कुछ ही विरले इंटेलिजेंट लोग ये डिस्कवर करते हैं कि प्रॉब्लम बाहरी दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम अपने आप में है. तो इसको समझने के लिए एक I'll try to present a metaphor. Just try to understand this metaphor. This metaphor will make most of the things clear. A person experiences a peculiar problem. एक बार एक आदमी बस में जा रहा था तो उसको एक आवाज सुनाई दी. "श्श" करके एक कान में एक धीमी सी "श्श" करके आवाज सुनाई दी. तो उसने सोचा कि वो आवाज टायर से आ रहा है, टायर पंक्चर हुआ है और वो टायर से आवाज निकल रहा है. तो वो थोड़ी देर आवाज उसके कान में गूंजने लगी. तो इर्द गिर्द देखा तो सब लोग चुपचाप बैठे थे. तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ. तो उसको लगा सब लोग चुप क्यों बैठे हैं, ये बस गिर जाएगा, टॉपल हो जाएगा. तो ही एक्सपेक्टेड others to suggest to change the tire to the driver. एंड वो सोच रहा था कि सब लोग चुप क्यों बैठे हैं. तो उसने सामने वालों को पूछा कि आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या. सामने वाले बोले कि उनको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है. तो पीछे वाले लोगों से भी उसने पूछा कि आपको कुछ आवाज सुनाई दे रहा है क्या. पीछे वाले लोग भी बोलने लगे कि हमें तो कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रहा है. तो बस इसके कान में वो आवाज अभी भी गूंज रही थी. सो ही वॉज बिट कंफ्यूज्ड. तो उसने जाके ड्राइवर से बोला कि मेरे को ये सुनाई दे रहा है, बाकी सब लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, आप एक बार उतर के जरा टायर चेक कीजिए. तो ड्राइवर ने नीचे उतर के टायर चेक किया. द टायर वाज इंटैक्ट बट दैट पर्सन वाज स्टिल हियरिंग दैट नॉइस. तो उसको लगा किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है, टायर भी इंटैक्ट है, तो कहीं ना कहीं उसके कान में ही कुछ दोष है. So he went to an ENT doctor, and the doctor discovered that there was an inner condition in his ear because of which some people will hear some noise permanently. उस condition को tinnitus बोलते हैं. डॉक्टर ने एक condition diagnose किया tinnitus करके, जिसके कारण उसके कान में लगातार आवाजें बजती रहती है. तो as long as the internal noise is mistaken as outside noise, this person will go on struggling to change the tire or change external circumstances. जब तक हम इंटरनल नॉइज को बाहरी नॉइज करके मिस्टेक करके समझ लेते हैं, तब तक हम बाहरी circumstances को चेंज करते ही रहेंगे. So try to understand this sentence very carefully. As long as the internal noise is mistaken as outside noise,
we will go on changing the external circumstances. हम जब तक ये नहीं समझते कि वो आवाज, वो जो भी टर्बुलेंसेस हो रही हैं, वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, वो हमारे अंदर से नहीं हो रही हैं, जब जब हम ये समझते हैं कि वो बाहर से हो रही हैं, तब हम बाहरी सर्कमस्टांसेस को चेंज करने में लग जाते हैं. द मोमेंट वन अंडरस्टैंड्स दैट द नॉइज इज फ्रॉम विद इन, जब हम वो नॉइज के सोर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सब हमारे अंदर हो रही हैं, जब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, then alone we can go to a solution provider or a mentor or a spiritual guide and do whatever is required. जब हम ये acknowledge करते हैं कि प्रॉब्लम्स का जड़ बाहर नहीं है, प्रॉब्लम्स का जड़ अंदर है, जब हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जेलसी, कंपैरिजन, ग्रीड, एवरिस, ये जो सब वाइसेस है, वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर के सर्कमस्टांसेस से नहीं आ रहे हैं, तब करेक्शन का गुंजाइश पैदा होता है. देन देर इज अ रूम फॉर करेक्शन. देन अ स्पिरिचुअल डॉक्टर, सॉरी, a guide, a spiritual mentor can help you. So ये जो भी है, ये noises है, external problems, there are no such things called external problems. External problems are internal noises. ध्यान से नोट कर कीजिए, external problems are internal noises are of samsara. So all these problems that we face lie within us alone. This is the bottom line. If we acknowledge this fact, then we are on the right path. This is the first stage. Acknowledgement of the source of the problem and acknowledging the fact that all the problems arise within us and the problems are external manifestations of these internal turbulences. Okay, I hope ये समझ में आया होगा. The bottom line is, बाहर के problems बाहरी नहीं होते, they are the internal noises. अभी हम क्लियर करेंगे थोड़ी, ये बारीकियां हैं. The same thing will be deciphered, will be elaborated in Shloka 2.1. There is no such thing called external problem. It is the perception that we make. It is the internal noise that makes a mountain out of the mole. ये जो हमारा internal mapping होता है, internal noise होता है, that is the root cause of the problem. External problems are just manifestations of those internal conflicts. अभी हम how do we prove that the problem is not outside? हम ये साबित कैसे करेंगे कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है? This is very fundamental, this is very rudimentary. आप सोच के देखिए, because any amount of external adjustment we do, problems will not get solved. आप कितना भी एफर्ट डालो, आप कितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर लो, संसारिक प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगे. जो भी सॉल्व होंगे वो टेम्पररी होगा. आपको फिर से वो टर्बुलेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, जद्दोजहद अंदर से वो होती ही रहती है. आप सुखी नहीं रह पाओगे. आप एक, इट्स लाइक अ बलून. आप एक बलून पे स्टेप करोगे तो दूसरे साइड इन्फ्लेट होगा, दूसरे साइड स्टेप करोगे तो और दूसरे साइड इन्फ्लेट होगा. तो कभी भी ब्लोन बलून को आप फ्लैट नहीं कर सकते. इनर टर्बुलेंसेस रहते ही हैं. सो हम इसको कैसा समझे? वी हैव बीन डूइंग एडजस्टमेंट्स, वी हैव बीन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स राइट फ्रॉम आवर बर्थ. As a baby, we look for external adjustments. As youth, we did external adjustments. As a middle-aged persons, we are still doing that. Even after 60 years of adjustments,
we still find the inner problems continue. ये प्रॉब्लम्स, इनर प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगे, प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व ही नहीं कर पाते. So, when an intelligent person takes stock of the situation, when he introspects and asks the question, how come all of these changes have not solved the problem? हम जो बाहरी जद्दोजहद करते हैं, हम जो बाहरी चीजें करते हैं, इनसे प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होता? हम करते एक प्रॉब्लम, हमें लगता है कि वो सॉल्व होता है, बट वो होता नहीं. दूसरे प्रॉब्लम एमर्ज होता है, दूसरा प्रॉब्लम के रूप में सरफेस होता है. We will not be able to solve the external problems permanently. एक आदमी मिला था. He said, I switched a job. I earn 3 lakhs per month. The job is very satisfactory. He said he is young, health is fine, everything is fine. And he also said he doesn't know where he's going wrong. He's missing something and he's dissatisfied. जॉब है, बंगला है, 3 लाख रुपए कमाता है, हेल्थ है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग एवरीथिंग सीम्स फाइन, बट उसको पता नहीं है, वो खुश नहीं है. समवेयर समथिंग इज मिसिंग एंड ही इज डिससेटिस्फाइड. सो इफ यू ट्राई टू डाइसेक्ट द प्रॉब्लम, जब हम सोचते हैं कि व्हेन सैलरी इज नॉट देयर, पर्सन में थिंक अ हायर सैलरी वुड सॉल्व द प्रॉब्लम. बट यहाँ पे एक ऐसा बंदा है, हियर इज अ पर्सन हु हैज हायर सैलरी, but still the problem is not solved. That means the problem is not with the salary. Salary से तो problem solve नहीं हुआ. 3 लाख per महीना, whatever it is, but he's still dissatisfied. Similarly, a person before marriage thinks that a wife would be able to help him remove the inner noise. तो वो समझता है कि शादी होने के बाद वाइफ हेल्प करेगी. But when he sees people with wives, they still have got the quickie noise coming. सांसारिक लोगों से जब देखता है तो उसको लगता है ये तो दुखी है. सो वाइफ विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. सिमिलरली चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, दे विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे क्या है? दिस रिक्वायर्स अ मैच्योर इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड दैट एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स डू नॉट स्टॉप द इंटरनल नॉइस. आप बाहर कितना भी जद्दोजहद कर लो, अंदर की आवाज, अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट उठते हैं, टर्बुलेंसेस होते हैं, अंदर जो अर्थक्वेक होता रहता है, उथल पुथल होता रहता है, उसको आप कभी नहीं रोक पाओगे. एक्सटर्नल एडजस्टमेंट से या एक्सटर्नल एंडेवर से, एक्सटर्नल एफर्ट से आप अंदरूनी आवाज को रोक नहीं पाओगे. सो नाउ, एक मंडूक उपनिषद में एक श्लोक आता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद मयान्यास त्याकृत कृतेन. परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद मयान्यास त्याकृत कृतेन. So it says a cultured, intelligent person, a mature person, after tampering with the word, after making external adjustments, after making some external adjustments, finds his inner conditions to be same. And he should note that the problem is within himself. तो ये मंडूक उपनिषद में क्लियरली कहा गया है, आप भले ही बाहर के चीजों को चेंज करो, वो कभी अंदर की जो इनर कंडीशंस है उसको चेंज करने में मदद नहीं करेगा. इनर के प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहेंगे. एंड वंस he knows that the problem is within, he finds that he does not know how to solve it. यहाँ एक बाहरी की चीजें आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए. Once he knows that the problem is within, he finds that he does not know how to solve it. उसको पता नहीं चल रहा है कि उसको सॉल्व कैसा करे. बाहर की चीजें कर रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है. अंदर की चीजें हम जानते नहीं है,
अंदर की चीजों को कैसा शांत किया जाए, अंदर की चीजों को कैसा हैंडल करें, हम जानते नहीं है. सो वी कीप ऑन एडजस्टिंग, वी कीप ऑन मेकिंग चेंजेस, but we are not able to control the inner conflicts that are happening. हमारे inner demons को हम शांत नहीं कर पा रहे हैं. तो ये क्या दर्शाता है? This is the stage of helplessness, असहायता. तो फर्स्ट स्टेज, साधक का फर्स्ट स्टेज है डिस्कवरी ऑफ सांसारिक प्रॉब्लम्स. संसार के प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करता है. क्या है वो संसारिक प्रॉब्लम्स? राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर, ये जो संसारिक प्रॉब्लम्स है कहाँ से उत्पन्न होती है? बाहर से नहीं, हमने जाना कि वो अंदर से ही उत्पन्न होती है. तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाहरी दुनिया में, बट वो होती नहीं है. अंदर का तो हम जानते नहीं है कैसा सॉल्व करना है. तो ये जो अवस्था है, ये दैन्य अवस्था है, इसको कार्पण्य अवस्था बोलते हैं. ये साधक का सेकेंड स्टेज है. सो द फर्स्ट स्टेज इज द डिस्कवरी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ samsara. द सेकेंड स्टेज इज द स्टेज ऑफ हेल्पलेसनेस. वो एक स्टेज पे आगे पहुंचता है जहां पे उसको लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं. वो सब कुछ करके ले देख लिया बचपन से अभी तक, वो कभी परपीचुअल हैप्पीनेस को फाइंड नहीं कर रहा है. ही इज नॉट इन अ एटर्नल स्टेट ऑफ ब्लिस. वो सुख को प्राप्त नहीं कर पाया, एटर्नल सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, सदा सुखी नहीं हो रहा है, इनर टर्बुलेंसेस हो पा रहे हैं. तो समवेयर ही फील्स हेल्पलेस, असहाय फील कर रहा है. ये जो है ये दैन्य अवस्था है, इसको कार्पण्य अवस्था बोलते हैं. श्री कृष्ण परमात्मा ये थर्ड या फोर्थ श्लोक में 2.7 में, सातवें श्लोक में इसका फिर से इलैबोरेटली एक्सप्लेन करते हैं. इसको कार्पण्य अवस्था, दैन्य अवस्था बोलते हैं, स्टेज ऑफ हेल्पलेसनेस. ये साधक नाउ ही ग्रेजुएट्स टू सेकेंड स्टेज. पहला था प्रॉब्लम डिस्कवरी. सेकेंड स्टेज, he feels that he is helpless, he is unable to do anything, to find that eternal peace. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे. And once a person discovers that he has a problem and he is helpless, then alone he will go to a third stage, which is sharanagati, complete surrender. तो पहला स्टेज है प्रॉब्लम डिस्कवरी. वो हम लोग एक्नॉलेज करते हैं कि हम संसार में जूझ रहे हैं, संसारिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. तो हमें बचता क्या है? तो हम वी हैव टू सरेंडर, सरेंडर टू अ नोन गुरु और गॉड. हमें अब हम एक स्टेज पे हैं, हेल्पलेस स्टेज, जहां पे हम कुछ नहीं कर पा रहे. हमारे जो भी हमारे कंट्रोलेबल्स थे, जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस या सर्कल ऑफ कंट्रोल में जो भी आता है, वो हम सब करके देख लिए, कुछ नहीं हो पा रहा है. देन we will surrender to guru or god, we'll surrender to a mentor, we'll surrender to supreme. उस थर्ड स्टेज को बोलते हैं शरणागति. सेकेंड स्टेज है दैन्य अवस्था, कार्पण्य अवस्था. थर्ड स्टेज है शरणागति. और ये सरेंडर स्टेज जो है requires a lot of intellectual honesty and humility. यहाँ पे बहुत, इस शरणागति के लिए हमें बहुत ऑनेस्ट और हम्बल रहना पड़ता है. I might be highly educated, I might have many degrees, I may be occupying a very big prominent position, but I should be humble enough to admit that however educated I am, however high a position I may occupy, but for this problem of unhappiness, misery, and sansaric problems, I do not have a solution. I cannot find a solution. ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है. इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एज इन, मैं भले ही कितना ही विद्वान हूं, कितना भी लाइफ में अचीव कर चुका हूं, कितना भी लाइफ में बड़े पोजीशन पे हूं, लेकिन मैं
इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनहैप्पीनेस, मिजरी, सॉरो, ग्रीफ, एंग्री, एनवी, लस्ट. ये वॉइसेस को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. आई एम अनेबल टू फाइंड अ सोल्यूशन. ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पहले उद्भव होने का, ये दिस इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी हैज टू बट इट हैज टू एमर्ज. ये पहला ट्रेट है. सेकंड इज ह्यूमिलिटी. ही हैज टू हम्बल इनफ टू सरेंडर टू समवन हु नोज हाउ टू कंट्रोल द इनर कॉन्फ्लिक्ट्स. वो इतना हम्बल होना चाहिए कि he has to surrender to one who knows. So surrender is a big trait. शरणागति एक तीसरा स्टेज है. और फोर्थ स्टेज है एक्चुअल परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज. ये शरणागति होने के बाद ज्ञान योग शुरू होता है, ज्ञान पाने की जद्दोजहद स्टार्ट होती है. तो ये साधक के चार स्टेजेस है. फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ प्रॉब्लम्स. वी एक्नॉलेज दैट वी हैव प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल भी हैं, इंटरनल भी हैं. इंटरनल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग हेल्पलेस हैं. ये सेकेंड स्टेज है, दैन्यावस्था, स्टेज ऑफ हेल्पलेसनेस. कार्पण्य अवस्था भी बोलते हैं. हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये हम एडमिट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं. तो एक्नॉलेज करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेट होता है शरणागति. हम लोग जो इस इन चीजों को जानते हैं उनके शरण में जाते हैं, या गुरु और भगवान उनके शरण में जाते हैं. दिस इज द थर्ड स्टेज. ये जब शरणागति होती है, देन द देन देयर वुड बी अ ब्लॉसम ऑफ रियल स्पिरिचुअल नॉलेज. यहाँ से स्पिरिचुअल नॉलेज की उत्पत्ति होती है, उद्भव होता है. ये जो है, ये चार स्टेजेस पे हम लोग जब जाके उतरते हैं, तो हम गीता अभ्यास, गीता ज्ञान के पात्र हो जाते हैं. तो हमारे हमारे में क्या गुण होना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग इज, एज अ साधक वी नीड टू एक्नॉलेज दैट हमारे पास प्रॉब्लम्स है, हम प्रॉब्लम्स को कॉन्कर नहीं कर पा रहे, हम लोग हेल्पलेस हैं, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. और हम शरणागति लेते हैं कृष्ण भगवान से, उनके नॉलेज से, गुरु से, भगवान से शरणागति लेते हैं. जो जिनसे, जिनको ये नॉलेज है, जिनको ये मालूम है, जिनको ये पता है, उनसे हम ले सकें. इसके लिए इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी चाहिए. हम पहले हम वी हैव टू किल अवर ईगो टू बी रीबॉर्न. रीबॉर्न जो बोलते हैं, द्विज जो बोलते हैं, हमें दूसरा जन्म जो बोलते हैं, जब हम अपना ईगो का मरण होता है, जब ईगो मर जाता है, तब जाके दूसरा जन्म होता है. सो वी हैव टू कंप्लीटली सरेंडर टू गॉड एंड गुरु. ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, शरणागति होने के बाद तब हम गीता ज्ञान के अधिकारी, पात्र हो जाते हैं. वी बिकम recipient, we become eligible to gain the knowledge of Gita. अभी क्या हुआ है? अभी you might be knowing the background of Mahabharata. ये जो तीन स्टेजेस हैं, अर्जुना हैज गॉन थ्रू फर्स्ट स्टेज इन द फर्स्ट चैप्टर. तो उसको पता है अर्जुना को, he has discovered the problem. He has raga, he has shoka, he has moha. Arjuna knows that he is a samsari. He is within the sansara and he is experiencing raga, shoka, moha. इसको अर्जुन को पता है. सो उसने फर्स्ट स्टेप पार कर लिया है फर्स्ट चैप्टर में. बट स्टिल he has not discovered helplessness. वो अर्जुन सोचता है कि अभी भी वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाएगा. he thinks he has a solution for his problems. अभी वो सेकेंड स्टेज तक गया नहीं है, तो शरणागति भी नहीं हुई है. सेकेंड स्टेज इज नॉट. हम सब भी शायद अर्जुन की तरह ही है ना, कि हम भी आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं. शायद हम हाँ, हम भी. आई मीन इट्स एन इंडिविजुअल जर्नी. दो इंडिविजुअल सबका जर्नी ना. अपना अपना जर्नी है. आई मीन वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, वेयर वी आर, एट व्हाट स्टेज वी आर. कुछ लोग
कुछ लोग भक्ति मार्ग में बहुत आगे भी गए रहते हैं, शरणागति फैक्टर बहुत ज्यादा रहते हैं उनमें। कुछ लोग अभी they still feel that they're in control of their life. They still feel that they can find solutions for their own problems. हाँ So they feel that they are the masters of their own situations. तो अभी उनको वो स्टेज पे पहुंचे नहीं है, they haven't discovered that stage of helplessness. हेल्पलेसनेस वही उनको दैन्य अवस्था आई नहीं है, वो कार्पण्य अवस्था आई नहीं है। जब तक हम ये आएगा नहीं, ये ज्ञान इजीली परकोलेट होगा नहीं। It's a diffusion from higher concentration to lower concentration. Gita Gyan is always a diffusion. It flows from higher concentration to lower concentration. It flows from a higher Gyani to a lower Gyani. वो जो गुरु मार्ग, गुरु लीनियज से ही ये जाता है। मतलब जो सबसे जो ज्यादा जानता है वो, he that knowledge percolates from the one who knows to the one who doesn't know. It's a diffusion process. So इसमें क्या होता है, तो अर्जुन ने, he still thinks that he has a solution to the problem. उसने कृष्ण से पूछा नहीं है अभी तक ये, इसने he has still ये not. तो है ना कि हम भी ऐसे स्टक रहते हैं, वी नेवर ट्राई टू, क्या कहते हो, वी नेवर Right, ट्राइंग टू right. So आस्क that that आइडेंटिटी, that thing we have to bury. वो वी हैव जो टू बरी, बाउंड्री है, वो जो वॉल है, that thing we'll have to make it thin. वो उसको ओवरकम, we'll have to overcome, we'll have to bury that wall. वो जो barrier है, we'll have to dismantle that barrier. तो वो, if we think we are in control, if we think we can solve our own problems, that's an illusion. तो जब तक वो स्टेट नहीं आएगा, हेल्पलेसनेस स्टेट, वो हम स्पिरिचुअलिटी में आगे प्रोग्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑफ कोर्स ज्ञान मार्ग में थोड़े अलग रास्ते बताए जाते हैं, बट दीज आर द जेनरिक स्टेजेस। वही तो ज्यादा फैक्टर, ईगो ही तो मैटरिंग फैक्टर है ना, ईगो इज हाँ, द ईगो, मोस्ट, विल हैव टू किल द ईगो, बेसिकली किल द ईगो। then we can surrender, maybe feel helpless and then go ahead and surrender, right? So ठीक है, yeah, you can go ahead, thanks. Correct. Now here the solution that Arjuna has visualized is throwing the bow and arrow and then running away from the battle. उसने धनुष बाण नीचे रख दिए हैं, वो सोच रहा है कि वो रणरंग से भाग जाए। He has decided to run away, but suddenly he feels that that may not be the real solution, because one corner of his mind says that he's a kshatriya and that he has to fight for the sake of dharma. वो अभी द्वंद्व में फंसा हुआ है, there is some sort of confusion. तो पहला उसने धनुष बाण नीचे रख दिया था, तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि उसको रण छोड़ के भागना नहीं चाहिए। सो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि वो क्षत्रिय है और उस क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। सो उसके मानसिक स्थिति में थोड़ा प्रोग्रेस है। ग्रेजुअली फ्रॉम अ रॉन्ग डिसीजन, अर्जुना इज कमिंग टू अ डाउटफुल स्टेट। पहले धनुष बाण नीचे रख दिया था, दैट्स अ रॉन्ग डिसीजन। देन ही इज फीलिंग दैट somewhere in one corner of his mind he feels that he has to fight. That's a doubt creeping in. करो, युद्ध करो या ना करो, रॉन्ग डिसीजन से डाउट तक उसका प्रोग्रेशन हो चुका है। इनफैक्ट इट्स अ ग्रेट प्रोग्रेस फ्रॉम अ रॉन्ग डिसीजन कमिंग टू अ डाउट, is a great progress. So first chapter he has made a wrong decision, second chapter is coming to a doubtful state. So doubt is always better than a wrong decision, because when a person has doubt, at least he will try to take help of someone. There is a possibility of spiritual inquiry, there is a possibility of inquiry, there is a possibility of taking an external help, there is a possibility of a solution. जहाँ पे डाउट है, हम जाके डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं, जानने वाले से पूछ सकते हैं, rather than taking a wrong decision. So when a person takes a wrong decision, it's a one-way street. There is no possibility of coming out. So in the first chapter, Arjuna has taken a wrong decision. And in the second chapter, Arjuna progresses from a wrong decision to doubt. तो उसका प्रोग्रेशन होता है सेकेंड चैप्टर में,
So always the progress is from a wrong decision to doubt to knowledge. इसको wrong decision to doubt to knowledge. तो इसको बोलते हैं viparya to samshaya to jnana. So there is a progress, spiritual progress. Viparya to samshaya to jnana. So सांख्य का कुछ मीनिंग है क्या? सांख्य is what? Like, what is the Sankhya meaning? is the analytical knowledge. Sankhya, abhi, we'll come to that. Sankhya is analysis, analytical knowledge. So ये जैसा progression होता है, tamas to rajas to sattva is a spiritual progress. Wrong decision to doubt to right decision is also an intellectual progress. So any doubts so far? नहीं, कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए. Okay, shall we go ahead to first shloka of second chapter? Sure. इसको Yes, sir. Yes, recite please. recite कर लेते हैं. Recite कर लेते हैं. And I want you to memorize this shlokas. एक सेशन में एक श्लोका ही रख रहे हैं, तो बीच में 3-4 दिन का गैप मिलता है, तो आप कृपया ये श्लोक को बाहर कर लीजिए. बहुत ही सिंपल श्लोक है, लयबद्ध श्लोक है, मीटरिक श्लोक है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी. तो आई वॉन्ट यू टू प्लीज रिसाइट विथ मी. प्लीज अनम्यूट योर माइक्स. सब लोग अनम्यूट कीजिए. संजय उवाच Sanjay Uvacha तं तथा कृपयाविष्ठम् Tam Tatha Kripayam Vishya तं तथा कृपयाविष्ठम् तं Tam तथा Tatha कृपया Kripayam okay तं तथा कृपयाविष्ठम्. So Tam तं Tatha तथा Kripayam कृपयाविष्ठम् तथा कृपया Vishtam अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् Ashrapurna Kuleshwam अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्. So first दोनों लाइंस गाएंगे. तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्. I'll share that, please. Just hold on. I forgot to share that. Just hold on. मैंने presentation भी बनाया था. So forgot to share. Right. You can see that shloka on your screen. Yeah. Tam tata krupaya Aya vishtam तं तथा Tatha कृपया Kripaya Vishtam विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् Ashrapurna Kuleshwam कुलेक्षणम् विश ओके अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् Ashrapurna Kuleshwam विषीदन्तम् इदं वाक्यम् Vishidantam वाक्यम् Vakam विषीदन्तम् इदं वाक्यम् Vishidantam Vakyam उवाच मधुसूदनः Uvacha उवाच Madhusudana उवाच मधुसूदनः. Uvacha Madhusudana देखिए इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए. जहां पे लाइन आता है एक के ऊपर, उसको खींचना है. तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, जहां पे ऊपर एक डैश आता है, उस स्वर को आपको खींचना है.
विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो मतलब ये थोड़ी बारीकियां हैं। सो आप YouTube में वगैरह देख लीजिए इसको कैसा प्रोनाउंस करते हैं। बट आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस थिंग बाय हार्ट। हम हफ्ते में 2 ही श्लोक कर रहे हैं, तो धीरे से जाते हैं, क्योंकि इसका इसका जो फिलॉसफी है, इसका जो स्पिरिचुअल एसेंस है, बहुत ज्यादा है। मैं 1 घंटे में एक श्लोक का भी जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे ऑनियन को जैसा पीलते हैं, ऐसा इस थ्रेड्स को, इसको पीलते जाएंगे, इसको डाइसेक्ट करते जाएंगे, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। बिजनेस स्टैंड पॉइंट से कैसा होगा, स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट से कैसा होगा, पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से कैसा होगा, सोशल स्टैंड पॉइंट से कैसा रेलेवेंट है ये मैसेज, और हम अपने जिंदगी में ये कैसा अडॉप्ट कर पाएंगे। रादर देन हम लोग इसका एसेंस भी अंडरस्टैंड करेंगे, बट एम्फोसिस इज मोर ऑन assimilating this knowledge and applying this knowledge in our daily life। तो इसको हम अपने जिंदगी में कैसा इसको हम अप्लाई करते हैं, उस पे ज्यादा एम्फोसिस होगा। तो एक 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 अंश जो है 25% हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसका गूढ़ार्थ जो है, भावार्थ जो है, जो एसेंस है, तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट भी अंडरस्टैंड करेंगे। बट एम्फोसिस ये होगा कि इसका जो एसेंस है हम रियल लाइफ में कैसा उतारें। एंड एवरी श्लोका शुड ब्रिंग इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन यू। आपको हर एक श्लोक आपको आपके अंदर के सोल को टच करना चाहिए, और हर एक श्लोका आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा आपको ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस सेकेंड चैप्टर द ऑब्जेक्टिव वुड बी, ये सेकेंड चैप्टर होने के बाद आप इतने सशक्त हो जाना चाहिए, सेकेंड चैप्टर आप जब घूट के पी जाएंगे, तब नन ऑफ द सफरिंग्स, नन ऑफ द एक्सटर्नल थिंग्स शुड बॉदर यू। आपका जो मन है वज्र की तरह, क्या बोलते हैं, एकदम सॉलिड हो जाएगा। आपको एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सटर्नल सिचुएशंस को शील्ड करेगा। आप स्वयं को जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और none of the external affliction should bother you, none of the external vexation should bother you। जो भी संसारिक घटनाएं घटती हैं वो आप साक्षी भाव से देखोगे। आप ये साक्षी भाव उत्पन्न करता है, ये विटनेस कॉन्शियस जिसे बोलते हैं, ये सेकेंड चैप्टर का मेन सार है। आपके अंदर विटनेस कॉन्शियस जागृत होगा, आप सबको साक्षी भाव से देखोगे, शरीर भाव आपसे छूट जाएगा, अपने आप से पहचान लोगे, आप सही में चीजों को समझ पाओगे। इसका मतलब है यू विल शेड योर इग्नोरेंस। अज्ञान को आप, अज्ञान के ड्रेस को आप इस उतार दो, सही में आपके नॉलेज बॉर्न होगा। सेकेंड चैप्टर इज द एसेंस ऑफ एंटायर गीता। सारे 18 अध्याय का सार सेकेंड चैप्टर में है। सेकेंड चैप्टर को आप घूट के पी जाओगे तो द ऑब्जेक्टिव इज आप इतना सशक्त हो जाओगे कि इफ लाइफ थ्रोज यू लेमन्स यू विल मेक अ लेमनेड आउट ऑफ इट। आपको कुछ भी लाइफ थ्रो करेगा, आप उसको हंसी हंसी पी लेंगे। सो दैट शुड बी योर स्टेट। तो आप सही में सेकेंड चैप्टर का साक्षात्कार हुआ, मतलब उस तरीके से आपने सही मायने में सेकेंड चैप्टर को समझ लिया है। समझने को समझते हैं, बट अगेन हैविंग सेड दैट, समझ के छोड़ दिया ना, इट्स लाइक चेंजिंग द ड्रेस, इट्स ऑफ नो यूज। तो आपको हर एक श्लोक के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करो, निधि ध्यासन करो, थोड़ा रिफ्लेक्ट करो। सो आई मीन राइट नाउ we should be in a stage where we should surrender ourselves to higher realms, where we should surrender to higher principles, we should surrender ourselves completely to gods and gurus। हम अपने ईगो को, हम हमारा आज का यही है
कि जो भी हम अपने लेबल्स हैं, जो भी हम अपने आप को जानते हैं, हम ये है फलाना है जो भी है, हम उसको छोड़ दें, हम उसको उतार दें, दैन्य भाव अपनाएं, एक स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस। वो जब देखिए, जब तक आपको लगेगा कि आप इन कंट्रोल में हो, आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, तो भगवान आप पे ही छोड़ देगा। आप सशक्त हो, आप कर लो। जब तक ये लगता नहीं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान आप संभाल लो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं अभी अ, अशक्त हूँ, सब तरीके से अशक्त हूँ। आई कैन नॉट मूव इवन एन इंच ऑफ ब्लेड विदाउट योर ग्रेस और कृपा। जब तक वो भाव नहीं आएगा, तब तक ये ज्ञान भी अंदर परकोलेट नहीं होगा। तब तक बहुत सारे हम लोग इल्यूजन में ही जीते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, तो वी आर ट्रेवर्सिंग अ रॉन्ग पाथ। तो वहां पे थोड़ा हमें सतर्क होना है। तो थोड़ा हमें आज का क्लास का टेक अवे है, ट्राई टू ट्राई टू सिंक इन द ओशन ऑफ सरेंडर। थोड़ा जितना आपको सरेंडर का इंटेंसिटी टुवर्ड्स गुरु एंड गॉड जितना ज्यादा बढ़ता है, उतना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। And don't ever be under the illusion that you are under the control of external circumstances. ये माया है, illusion है, that makes us feel so, and that's why maya is uh, is equated to delusion. हम लोग deluded भी हो जाते हैं, हम लोग we are delusional. In fact, हम लोग समझते हैं कि हम चीजें को मूव कर रहे हैं, which is a deluded thinking. चीजें मूव हो रही हैं if we see them in the right perspective. So वो नॉलेज है। तो वो नॉलेज, साक्षी भाव, वो विटनेस कॉन्शियसनेस, ये अंकुरित होता है। सो दैट हैपेंस इन द सेकंड स्टेज, एंड वी हैव टू बी ओपन टू दैट, वी हैव टू बी ओपन माइंडेड। और हर एक श्लोक को धीरे धीरे धीरे, ऑफ कोर्स इट वुड गो वेरी स्लो बिकॉज आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन मल्टीपल लेयर्स ऑफ दैट श्लोका। अलग अलग आचार्यों ने क्या कहा है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में कैसा उसका मीनिंग निकलता है, तो आप उसको एक कॉम्प्रहेंसिव वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे एक श्लोक को। सो दैट बीइंग सेड, I'll open the stage now for questions. If you have any questions, please shoot. जो भी questions है with respect to what we have discussed today. I hope it was सर of some use to you. हाँ बोलिए आशु जी, बोलिए। सर एक्चुअली क्या है, जो श्लोका है संस्कृत में है, मेरा संस्कृत इतना अच्छा नहीं है, तो अगर अच्छा, जैसे मैं उसको रॉन्ग प्रोनाउंस करूंगा स्टार्टिंग से 1 to 2 डेज प्रैक्टिस के दौरान, तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है क्या? नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है। देखिए, ये आप वही, आई मीन, ये भगवान की वाणी है, गीता भगवान के हृदय से निकला हुआ गीत है, ये भगवान का गीत है। आप कैसा भी प्रोनाउंस कर लो, इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। आई मीन, डजंट मैटर, आप कोशिश कर रहे हैं। सो इन द बिगिनिंग इट्स वेरी कॉमन टू फंबल एंड फाल्टर। ये बहुत ही कॉमन है कि हमसे चूक हो जाती है, बट जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आप बारीकियां आ जाएगी। गॉड विल गाइड यू, ही विल होल्ड। ये आप देखते जाएंगे, ये अनुभूति होते जाएंगे, आपकी लाइफ में मिराकल्स होते जाएंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें, ये कुछ भी नहीं है सर, ये निकल जाएगा, आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इफ यू ओके। practice it for 3 or 4 times, ऑटोमेटिकली इट विल कम। और ये थोड़ा आप YouTube वीडियोस में देख लीजिए, जी सर। और एल्स I'll try to send ये वर्ड्स को सेपरेट सेपरेट करके मैं ऑडियो क्लिप्स भेज दूंगा ग्रुप में। तो ओके सर, दैट वुड थैंक हेल्प, यू सर, दैट वुड थैंक यू हेल्प। सर। और एक चीज है, जी ये इवन आई एम नॉट संस्कृत पंडित, मेरे को भी संस्कृत ज्यादा नहीं आता है। सो इसका एसेंस इंपॉर्टेंट है rather than द लिंग्विस्टिक्स। और जो लैंग्वेज पैटर्न है, जो ग्लॉसरीज है, जो वोकेबुलरीज हैं, उससे ज्यादा
जो लैंग्वेज नुआंसेस हैं उससे ज्यादा इसका एसेंस बहुत महत्व रखता है. सो विल फोकस मोर ऑन द एसेंस, द हिडन मीनिंग्स of these shlokas rather than dwelling into the grammar and all that thing. जी ठीक है. तो हम सिर्फ सेकंड Thank दूसरा अध्याय ही का ये करेंगे, लाइक वी विल ओनली स्टडी द सेकंड अध्याय ऑफ गीता, राइट, थ्रू आउट योर कोर्स. नहीं नहीं, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे. सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सेकंड चैप्टर लिया है. एक्चुअली मैंने 12th चैप्टर लेना चाहता था, भक्ति योग. सो बट having said that, ये this would be the right foundation. ये second chapter would be the right it would set the right foundation for further study. आपको spiritually elevate करेगा, आपको एक स्टेज पे लाके रख देगा wherein everything would be smooth flowing thereafter. बाकी सब बहुत सरलता से निकल जाएगा. ये सेकंड चैप्टर इनग्रेन करना ही बहुत डिफिकल्ट है. सी कुछ सब लोग बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार. दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, एंड बाय द एंड ऑफ द सेकंड चैप्टर यू शुड हैव दैट आत्म साक्षात्कार. दैट्स इट. मतलब वो हो गया, कंप्लीट हो गया. जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया उसकी उन्नति हो गई, बचा कुछ नहीं है. बाकी सभी है भगवान कौन है, जगत कौन है, सो ऑन सो फोर्थ. भगवान का वर्णन होता है, कर्म कांड होता है. सो ये सब अलग अलग थ्रेड्स श्री कृष्ण भगवान जी बोलते जाते हैं. बट दोज बिकम वेरी वेरी इजी. द सेल बिकम्स वेरी स्मूथ देयर आफ्टर. ये सेकेंड चैप्टर बहुत फाउंडेशनल है. आत्म साक्षात्कार एक बार हो गया, दैट्स इट. देन देयर इज नथिंग एल्स टू बी पॉन्डर्ड, नथिंग एल्स लेफ्ट टू बी एक्सप्लोर्ड. एक बार वो आत्मा क्या है जानने के बाद कुछ बचता नहीं है. You have to seek shelter in the soul. You have to seek shelter in the आत्मस्थ होना ही सब कुछ है. आप आत्मस्थ हो जाओगे, then that's it. नहीं, very good, beautiful introduction today you have given. So it was really nice, knowing, understanding so many things. ये preface है. So this is the let's say stepping stone for chapter 2. So first few shlokas, शंकराचार्य जी ने 10 श्लोका तक व्याख्यान नहीं किया है. So Shankaracharya has given a very big explanation from 11th shloka. So third और fourth श्लोका से बहुत गहरा होता जाता है. ये बहुत ही, जब कृष्ण भगवान जब बोलने लगते हैं, हर एक श्लोक बहुत गहरा हो जाता है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहता है उसमें. एंड एक हफ्ता भी अगर उस पे मल करेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, तो अलग अलग व्याख्यान, मेडिटेशन में अलग अलग व्याख्यान उभर के आएंगे एक एक श्लोक के, और एक पर्सनालिटी चेंज होता जाएगा. एंड दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव, टू चेंज आवर पर्सनालिटी. हम कहाँ थे, by the end of this chapter, assess yourself where you were before the beginning of the second chapter, and assess yourself where you will be after the completion of the second chapter. You will have covered a lot of area, a lot of grounds. And spiritual progress, तो आध्यात्मिक उन्नति तो बहुत ज्यादा ही हुआ रहेगा by the end of second chapter. And it's a combined journey. हम सब साथ मिलके इसको navigate करेंगे. So I request you बने रहिएगा so that this goes smoothly. So next class would be on Saturday 9:30 again. थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है टाइमिंग्स. Sometimes I might go beyond 10:30. So क्योंकि वो डेप्थ बहुत ज्यादा रहता है उसमें, सब 1 घंटे में कवर हो पाना मुश्किल है. And the next session, I am bound to cover the next shloka or the next verse. So I have the compulsion of completing the shloka within that particular session itself. So I request some sort of patience from your end, but it will yield great dividends if you stick along. So I hope you have learned something. I hope it was worth your time. कुछ प्रश्न है तो आज के सेशन के रिलेटेड पूछ लीजिए. आई एम ओपन टू क्वेश्चंस.
I might not give you relevant answers. That's being a disclaimer. We can have on Friday also, if everyone is okay with it. We can have the sessions on Friday also, Friday night. If everyone is okay with it, we can have on Friday night 9:30 as well. Generally weekends के दौरान सब लोग I mean, the thought process was everyone would be free on the weekends. So we thought of having one session on the weekends, और वो श्लोक भी बाहर हो जाएगा 3-4 दिन, और प्रिपेयर भी हो जाएंगे. 3 दिन चाहिए एक श्लोक बाहर करने को, तो इसीलिए 3-3 दिन के बीच 3-3 दिन का ड्यूरेशन रखा है. और मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप श्लोकास को बाहर कीजिए. सी इट्स नॉट अबाउट, ये लत लग जाएगी. आप पहले श्लोका को, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आई एम स्पीकिंग विद इन ऑल अर्नेस्टनेस. जब आप श्लोका को बाहर करेंगे, पहले आप श्रुति, ये श्रवण, पहले आप इसको सुन सुन के एक आदत लग जाएगी. जब आप सुन सुन के आदत हो जाती है, तब आप उसको गहन रीति से उसको ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे. एंड दिस विल हैपन ऑटोमेटिकली, दिस विल हैपन सबकॉन्शियसली. जब आपको श्लोक आ जाएगा, तब नेचुरली वो श्लोक आपको ग्रेविटेट पुल करेगा. एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो नेचुरली श्लोका के एसेंस को भी आप कैप्चर कर लेंगे. बट पहला एफर्ट है, पुट इन योर एफर्ट्स टू लर्न द श्लोका. ये अगर एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आप अगर सेकेंड चैप्टर श्लोक को पूरा बाहर कर लेंगे, यू I mean, you are way better than most of the pundits. Believe me when I say this. आपको पूरा sacred text का सार आपको मुंह जुबानी याद रहेगी. I mean, that's the kind of proficiency you possess when you had this second chapter. इसीलिए मैंने एक चैप्टर को लिया है, एक श्लोका एक सेशन को लिया है, ताकि धीरे से जाए, आप उसको मनन करे, श्रवण करे, निधिध्यासन करे, रिफ्लेक्ट करे, सफिशिएंट टाइम मिलेगा. तो जब आप 10-12 श्लोक को जब आप रिसाइट करने योग्य हो जाओगे, आप अपने आप जान पाओगे आप आध्यात्मिकली कितना आगे जा रहे हो. सो हैव दैट फेथ. ये मेरे भी वाक्य नहीं, ये भगवान के वाक्य हैं. सो दे आर फार मोर सीक्रेट देन वी थिंक दे आर. And they have far more healing effect, meditative effect. और उसके, believe me when I say this, your life changes over a period of time. You will attract a lot of abundances, good luck, and all good things that are there in the world. ये करते करते आपकी जर्नी ब्लेसड होगी, यही बोल सकता हूँ मैं. And if there are no more questions, can we wind up this session? Yeah, sure. Thank you. Thanks, ma'am. ओके भैया. आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. And Seema Didi, thanks for facilitating this session. I think she has logged off. Right. Thank you, boy, actually, for the wonderful knowledge. नहीं. Thank you for attending this session. श्रोता भी तो चाहिए. It's a two-way street. क्वेश्चन था, आपने बोला था कि विक्टिम कॉन्शियसनेस एंड वो दो जो थे ना, तो हमें ज्ञान होता है कि हमें इसमें नहीं फंसना, फिर भी हम इसमें फंसते रहते हैं. तो हाउ टू बी नॉलेज ऑल द टाइम. हम No, फरियाद करते रहे ना, तो ये मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो ये होता, नहीं या ये फिर ब्लेम करते हैं दूसरों को. this things will change. ये देखिए, इसी के ऊपर पूरा सेकंड चैप्टर आधारित है. एक थ्रेड बाय थ्रेड, लेयर बाय लेयर ये निकलता जाएगा. आप ये देख लीजिए. आई मीन, इन द कमिंग श्लोकास, इन द वेरी नेक्स्ट फ्यू श्लोकास इटसेल्फ इसका आंसर रहेगा. तो आपको इसको आंसर्स मिल जाएंगे. ब्लेम गेम, ये सब क्योंकि ये पर्सपेक्टिव जो है, हम
देखिए, ये जो हम बॉडीली लेवल के तौर पे हम फंक्शन कर रहे हैं, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हम फंक्शन कर रहे हैं, इसीलिए हम बॉडीली प्लेटफॉर्म की चीजों के से देख रहे हैं। जब पर्सपेक्टिव चेंज होगा, जब हम आत्मा के लेवल से चीजों को देखने लगेंगे, सोल के लेवल के से हम सोल के प्लेटफॉर्म से जब देखने लगेंगे, दैट इज द प्लेटफॉर्म थ्रू विच संत महात्माज ऑपरेट, दैट इज द प्लेटफॉर्म थ्रू विच रेवर्ड गुरुज ऑपरेट। वो प्लेटफॉर्म से हम जब दुनिया की दृष्टिकोण को देखेंगे तो नजरिया बदल जाएगा। विल नॉट बी मडल्ड इन द ब्लेम गेम्स, विल नॉट बी विद इन दैट, आई मीन वो मेंटेलिटी रहेगा ही नहीं। एक ग्रैटिट्यूड मेंटेलिटी आ जाएगा जब हम वो सरेंडर भाव, जब हम आत्मस्थ हो जाएंगे, नजरिया बदल जाएगा। वो बोलते हैं ना, नजरिया बदला तो नजारे बदला। तो बेसिकली वही है, हाँ हाँ। ये नजरिया ही बदल देता है पूरा जो देखने का है। सो इट चेंजेस द पर्सपेक्टिव। So that's it from my end. So we'll see you on Saturday, 9:30. Thank you for tuning in. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.